السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ کو MBA میتھمیٹیکل سوسائٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آپ کی اسکرین کے اوپر کلاس 10th کا یونٹ نمبر 2 جو مینشن کیا ہوا ہے، اس کا نیم آپ کے سامنے ہے کہ تھیوری آف کوڈریٹک ایکویشنز۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج ہم اس کا کوسچن نمبر 1 جو ہے اس کو کمپلیٹلی سولو کریں گے۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جی دوستو، ایکسرسائز 2.2 میں آپ دیکھیں کہ کوسچن نمبر 1 کی جو سٹیٹمنٹ ہے، فائنڈ دا کیوب روٹس آف دیز نمبرز۔ آپ کو کچھ نمبرز دیے ہوئے ہیں لائک -1، 8، -27 اینڈ 64۔ آپ نے ان کا کیوب روٹ جو لینا ہے اور اس کے بعد اس کے ویلیوز کو فائنڈ۔ تو سب سے پہلے ہم کوسچن نمبر 1 کے پارٹ اے کو سمپلیفائی کرتے ہیں۔ فائنڈ دا کیوب روٹس آف -1۔ اس کے سولوشن میں آپ نے لکھنا ہے کیوب روٹ آف -1 از ایکول ٹو، میتھمیٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کیوب روٹ آف -1 کو ایسے لکھا جاتا ہے۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، لیٹ کرنا ہے یہ جو کیوب روٹ آف -1 ہے یہ x کے ایکول ہے۔ سو لیٹ x از ایکول ٹو کیوب روٹ آف -1۔ یہ اس کی ریڈیکل فارم ہے۔ جب ہم اس کو ایکسپوننشیل فارم میں لکھیں گے تو یہ ایسے دکھائی دے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کام کرنا ہے، دونوں طرف کیوب لینا ہے۔ سو ٹیکنگ کیوب آن بوتھ سائڈس۔ سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ دونوں طرف کیوب اپلائی کریں گے تو x⁻³ لیفٹ ہینڈ سائڈ میں بھی آپ نے کیوب اپلائی کر دیا، اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ تھی اس میں بھی آپ نے کیوب اپلائی کر دیا۔ تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے کچھ ایسی دکھائی دے گی۔ اب یہ جو کیوب ہے نا اور کیوب روٹ ہے، یہ دیکھیے گا یہ جو کیوب ہے اور یہ جو 1/3 ہے، یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے۔ جب یہ دونوں کینسل ہوں گے تو سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے کچھ ایسے دکھائی دے گی کہ x³ از ایکولز ٹو -1۔ جی دوستو، تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں x³ از ایکول ٹو -1۔ جب آپ اس -1 کو لیفٹ میں لے کے آؤ گے تو یہ x³ + 1 ایکول ٹو 0 ہو جائے گا۔ اب آپ یہ جو 1 ہے اس کو 1 کا کیوب بھی لکھ سکتے ہیں، x³ + 1³ ایکول ٹو 0۔ آپ لوگ کلاس 9th میں ایک آئیڈینٹی پڑھ کے آئے ہیں کہ a³ + b³ از ایکول ٹو a + b انٹو a² - ab + b²۔ سو ہم یہ والی آئیڈینٹی اس جگہ پہ یوز کریں گے تو آپ کو یہ ایکسپریشن کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا۔ So this gives two possibilities۔ نمبر 1 میں دکھے گا x+1، یہ جو x+1 ہے اس کو بھی آپ نے 0 کے ایکول پٹ کرنا ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ یہ جو کوادریٹک ایکسپریشن ہے اس کو بھی آپ نے 0 کے ایکول پٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی سمپل ہے، اس میں سے آپ 1 کو ادھر لے کر آؤ گے تو یہاں سے آپ کو پہلا آنسر جو ہے، پہلی جو x کی ویلیو ہے وہ مل جائے گی۔ اب یہ ایک کوادریٹک ایکویشن ہے، اس کوادریٹک ایکویشن میں آپ اے بی سی کی ویلیوز کو فائنڈ کریں گے کیونکہ اس کی جو مڈ ٹرم بریکنگ ہے وہ پاسبل نہیں ہے، اس کی فیکٹرائزیشن پاسبل نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے کوادریٹک فارمولا یوز کریں گے۔ سو اے بی سی کی آپ نے ویلیوز لکھنی ہے، اس کے بعد یوزنگ کوادریٹک فارمولا۔ سو کوادریٹک فارمولا آپ کے سامنے ہے x is equals to -b + -√b² - 4ac ڈیوائڈیڈ بائی 2a۔ سو اسٹوڈنٹس اب آپ نے اس میں ویلیوز کو پٹ کرنا ہے بائی پٹنگ دا ویلیوز آف اے بی اینڈ سی۔ اس پورے فارمولا میں آپ نے اے بی سی کی ویلیوز کو ریپلیس کرنا ہے۔ اس مائنس کو مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے تو +1 ہو جائے گا، -1 کا اسکوائر کریں گے تو +1 ہو جائے گا، اور 4 کو ان 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو -4 ہی آئے گا۔ تو چلتے ہیں اس کی سمپلیفیکیشن کی طرف۔ جی دوستو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب ہم نے اس -1 کو -1 سے ملٹیپلائی کیا تو 1 دیکھنے کو ملا، یہ پلس مائنس ایز اٹ از، اور ریڈیکل سائن کے اندر آپ کو 1 - 4 اور ڈینومینیٹر میں 2 ملٹیپلائی بائی 1 کرنے سے 2 مل گیا۔ اب آپ نے کیا کام کیا، یہ 4 بڑی ویلیو ہے، یہاں پہ بڑی ویلیو کا سائن لگا دیا، اور 4 میں سے جب 1 نکالیں گے تو یہاں پہ آپ کو -3 دیکھنے کو ملے گا، اور ڈینومینیٹر میں 2 ایز اٹ از۔ اب آپ نے یہاں پہ دیکھا درمیان میں یہ پلس اور مائنس کا سائن ہے، آپ نے کیا کام کرنا ہے، اس کو ایک دفعہ پلس اور ایک دفعہ مائنس کی فارم میں لکھ دینا ہے۔ دوستو اس سے پہلے آپ لوگوں نے کیوب روٹس آف یونٹی میں اومیگا اور اومیگا اسکوئر کی ویلیوز کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، تو ہم پہلے نمبر پہ اس میں سے نیگیٹو کامن لیں گے۔ یہ جو آپ کو ایکسپریشن کمپلیٹ نظر آ رہا ہے اس کے نیومریٹر میں سے میں نے نیگیٹو کامن لیا۔ جب یہ نیگیٹو کامن لیں گے تو یہ 1 کا سائن بھی چینج ہو جائے گا، اور اس پورے انڈر روٹ کے باہر جو سائن تھا وہ بھی چینج ہو جائے گا، اور آپ نے دوسرے نمبر پہ یہ والی ویلیو ہے اس میں سے بھی نیگیٹو کامن لیا۔ یہ نیگیٹو کیوں کامن لیا یہ میں آپ کو ابھی کلیئر کر دیتا ہوں۔ میں نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ جو آپ کے سامنے ہے ایکسپریشن
इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा, 1 का भी साइन चेंज कर दिया और पूरे रेडिकल साइन के बाहर जो साइन वो भी चेंज कर दिया, तो आपको ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आपने क्या काम करना है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर है इस चीज़ से, कि जो -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 है, ये किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। और -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये x इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया और दरमियान में ये और एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है ये ओमेगा के इक्वल है। आप देख सकते हैं जिसमें प्लस आ रहा है वो ओमेगा के इक्वल है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा आ जाएगा। सो दोस्तों हम एक वैल्यू पहले निकाल चुके थे, hence x is equals to -1 minus omega and minus omega square. These are the cube roots of -1. तो ये था हमारे पास पहला जो पार्ट हमने सिंप्लीफाई किया कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1। आइए चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। जी दोस्तों, बी पार्ट में आपके सामने लिखा हुआ है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8। अब यहाँ पे हमें एक नंबर गिवन है 8, हमें इसके क्यूब रूट्स को फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे क्यूब रूट की मैथमेटिकल फॉर्म। ये क्यूब रूट ऑफ 8 लिखने का तरीका है। अब आपने इसको लेट कर लिया x के इक्वल, ठीक है। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ जब क्यूब लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उधर भी क्यूब देखने को मिलेगा और जो राइट हैंड साइड है उधर भी क्यूब देखने को मिलेगा। अब ये क्यूब और ये 1 डिवाइडेड बाई 3 जो पावर है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो आफ्टर कैंसिलेशन आपके सामने यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8 देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पर देखें वो जो 8 था उस 8 की जगह पे आपने 2 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है। और जब इस 2 की पावर 3 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो -2 आ जाएगा। बाकी स्टेटमेंट एज इट इज है। अब आप ये एक आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दोस्तों आपने ये आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी यूज करनी है जब, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे लिखना है दिस गिव्स 2 पॉसिबिलिटीज। नंबर 1 में दिस लीनियर एक्सप्रेशन बिकम्स 0 एंड दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑल्सो बिकम्स 0। ये लीनियर को भी आपने 0 पुट कर दिया और इस क्वाड्रेटिक को भी आपने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब आपने क्या काम करना है, यहां से x की वैल्यू निकाल ली बाय शिफ्टिंग द -2 टू द राइट हैंड साइड। वी हैव x इज इक्वल टू 2। दोस्तों ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो हम यहाँ से a, b और c की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। इसमें से a, b, c की वैल्यू आपके सामने है। जो x की पावर 2 का कोएफिशिएंट है वो a के इक्वल है, जो x की पावर 1 का कोएफिशिएंट है वो b के इक्वल है, और जो कांस्टेंट नंबर है वो c के इक्वल है। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये वैल्यूज को रिप्लेस करोगे तो आपको ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो b की वैल्यू 2 थी वो b की जगह पे रिप्लेस करने से आपको, और a की वैल्यू की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया और c पे आपने 4 पुट कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अब आपने यहाँ पे -2 लिखना है, 2 का स्क्वायर 4 कर देना है और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पे -16 आ। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखिएगा 4 -16 डिवाइडेड बाय 2 देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपने क्या काम करना है, -2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस के बाद 16 में से जब 4 निकाल देंगे तो ये -12 देखने को मिलेगा। और अगले स्टेप में आप देखिएगा ये जो अंडर रूट -12 है ये 2 अंडर रूट -3 के इक्वल है, क्योंकि जो अंडर रूट -12 होता है वो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल साइन ऑफ -3 के इक्वल होता है, और बाकी स्टेटमेंट जो है वो आपको एज इट इज देखने को मिलेगी। सो अब यहाँ पे देखें दरमियान में पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव है। सो दिस गिव्स 2 पॉसिबिलिटीज। आपने एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा आपने इसको माइनस में लिख दिया। सो दोस्तों अब आपने क्या काम करना है, न्यूमरेटर में देखें यहाँ पर भी 2 मौजूद है और यहाँ पर भी, तो दोनों में से आपने 2 कॉमन लिया। यहाँ पे जब 2 कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में देख सकते हैं आप लोग -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 देखने को मिलेगा। और इसी तरह यहाँ से आपने जब 2 कॉमन लिया तो -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 देखने को मिलेगा।
अब आप जानते हैं कि ये आपके सामने प्रॉपर्टीज़ में हमने ये पढ़ा था, क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज़ में, कि हमने -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 को ओमेगा कहना है, और उसके बाद -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 को ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम ओमेगा रिप्लेस करेंगे और ये माइनस वाली वैल्यू में हम ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 2 ओमेगा और x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। सो दोस्तों हम इससे पहले x की एक वैल्यू निकाल चुके हैं और वो 2 थी, हेंस 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जी दोस्तों, थर्ड पार्ट में आपके सामने है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -27। दोस्तों आपने क्या काम करना है, क्यूब रूट्स ऑफ -27 में इसकी पहले मैथमेटिकल फॉर्म देखें, ये ऐसे होती है। आप इसको लेट कर लें, ये x के इक्वल है, एंड इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप इसको मैथमेटिकल रेडिकल की फॉर्म में ही लेके चलें तो तब भी ठीक है। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ जब इसका क्यूब अप्लाई करेंगे तो ये आपको स्टेटमेंट कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये जो क्यूब है और ये जो पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो आफ्टर कैंसिलेशन आपको यहाँ पे x क्यूब -27 देखने को मिलेगा। अब ये जो -27 है, आप इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये +27 बन जाएगा। जब आप उस -27 को इधर ले आए तो ये +27 बन गया, तो x क्यूब +27 इक्वल टू 0 देखने को मिल रहा है। अब आपने क्या काम करना है, इस 27 को परफेक्ट क्यूब में लिखना है। तो ये 3 का क्यूब जो है ये 27 के इक्वल होता है। तो आपको इस तरीके से x क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू 0 जो है वो एक स्टेटमेंट देखने को मिल गई। अब यहाँ पे आपने आइडेंटिटी यूज करनी है कि a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये आइडेंटिटी जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये आपके सामने जो एक्सप्रेशन है ऐसा देखने को मिलेगा कि x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। So this gives two possibilities. Number 1 में this linear expression becomes 0 और number 2 में ये quadratic expression जो है ये भी 0 के इक्वल आएगा। So दोस्तों इसके बाद आपने यहाँ से तो सिंपली x की वैल्यू निकाल ली जो कि -3 आएगी, और इस quadratic expression में देखें जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, आपने इसमें से a, b और c की वैल्यूज को फाइंड आउट किया। उसके बाद आपने यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसके अंदर a, b, c की वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। सो दोस्तों ये जो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से +3 हो जाएगा। उसके बाद -3 का जो स्क्वायर है, ये जो वैल्यू है ये 9 के इक्वल आ जाएगी, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 9 करने से -36 और डिनोमिनेटर में दिखेगा 2 1 2 आ जाएगा। जब आपने वो सारा सिंप्लीफाई कर लिया तो वो ये स्टेटमेंट आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब यहाँ पे 3 प्लस माइनस रेडिकल साइन के अंदर -27 आ जाएगा, क्योंकि 36 में से जब 9 निकाल देंगे तो 27 आएगा, और बड़ी वैल्यू भी आपने यहाँ पे साइन को लगाना है। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो रेडिकल साइन के अंदर 27 आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -3 ही देखने को मिल रहा है, और डिनोमिनेटर में 2। सो दोस्तों अब आपने यहाँ पे इसकी दो पॉसिबिलिटीज, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 मौजूद है और यहाँ पर भी 3 मौजूद है। तो अब आपने -3 कॉमन लेना है, क्योंकि पहला नंबर हमें यहाँ पे -1 बनाना होता है। यहाँ पे हमें -1 बनाने के लिए -3 कॉमन लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ से नेगेटिव को कॉमन लिया। और ये वाला जो साइन है, जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें नेगेटिव कॉमन लेना पड़ा। जब नेगेटिव कॉमन लिया तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो 3 था ये -1 आ जाएगा, और यहाँ से जब 3 कॉमन लिया तो ये प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं ये आइडेंटिटी ये है, इसमें आप देख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा एंड दिस इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो ये जो आपके पास है ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी, और ये जो वैल्यू है ये ओमेगा की इक्वल आ जाएगी। तो आपने क्या काम करना है, इसको -3 ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और दूसरे नंबर पे ये जो है ये -3 ओमेगा आ जाएगी। हेंस
एक वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं और दो ये हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x इज इक्वल टू -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ -27। सो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 4 है। जी दोस्तों, पार्ट नंबर 4 में आपके सामने एक स्टेटमेंट है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। हमें 64 के क्यूब रूट्स को यहाँ से फाइंड करना है। सेम वही क्राइटेरिया है कि क्यूब रूट ऑफ 64 इज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ द रेडिकल साइन द क्यूब रूट ऑफ 64। सो यहाँ पे देख सकते हैं लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। आपने यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स करना है। और अब ये जो क्यूब लेने के बाद दोनों तरफ आपने जब क्यूब अप्लाई किया तो ये जो 3 और 1/3 है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आफ्टर कैंसिलेशन x क्यूब इज इक्वल टू 64 बचेगा। अब ये जो 64 है आप इसको 4 की पावर 3 में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 64 इस साइड पे शिफ्ट करने से -64 और ये 4 की पावर 3 बन जाएगी, x क्यूब माइनस 4 रेज़ टू पावर 3। सो इसके लिए आपने आइडेंटिटी यूज की, आपके सामने है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये देखिएगा ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब इसमें एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, सो दिस गिव्स टू पॉसिबिलिटीज। आपने लीनियर को भी जीरो पुट कर दिया और क्वाड्रेटिक को भी जीरो पुट कर दिया। दूसरे नंबर पे देखिएगा आपने यहाँ से तो इजीली x की वैल्यू को फाइंड कर लिया जो कि 4 के इक्वल है, और यहाँ से देखिएगा a b c की वैल्यूज निकालना है। उसके बाद आपने यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है और वैल्यूज को रिप्लेस करना है बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। सो ये देखिएगा b किसके इक्वल था 4, तो आपने b की जगह पे 4 लगा दिया, b स्क्वायर की जगह पे 4 स्क्वायर, और -4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे यहाँ पे 16 पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय a आ जाएगा। जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 64। तो देख सकते हैं आपके सामने -4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 16 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2। जब आप 64 में से 16 को निकाल देंगे तो -48 बचेगा, और -48 को आप 4 अंडर रूट -3 लिख सकते हैं, जो कि आपके सामने है कि रेडिकल साइन ऑफ -48 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, अंडर रूट के अंदर -3। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक दफ़ा इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। सो दोस्तों इसमें से आपने 4 कॉमन लिया, ये जो आपके पास प्लस वाली स्टेटमेंट है इसमें से आपने 4 कॉमन लिया। जब 4 कॉमन लेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और ये जो नेगेटिव आपके पास नेगेटिव साइन वाली स्टेटमेंट है इसमें से भी आपने 4 कॉमन लिया। जब 4 कॉमन लिया तो ये आपको ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, और नीचे ये आपके पास सब्स्टिट्यूशंस हैं, क्योंकि हमने पहला नंबर यहाँ पे -1 बनाना होता है, जहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा। अब आपने जहाँ पे -1 प्लस अंडर रूट -3/2 मिलेगा वहाँ पे ओमेगा रिप्लेस करना है, और जहाँ पर -1 माइनस अंडर रूट -3/2 मिलेगा वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 ओमेगा मिलेगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। तो अब दोस्तों 3 वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, एक 4 है, एक 4 ओमेगा है, एक 4 ओमेगा स्क्वायर है। These are the cube roots of 64. So I hope ये क्वेश्चंस जो थे ये आपकी समझ में आ चुके हैं, और ये काफ़ी स्टूडेंट समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आसान से हैं, आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपको ये इंशाल्लाह इसका रिजल्ट मिल जाएगा, और जो भी इसमें मसले मसाइल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप ये जो वीडियो थी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर देखा करें और शेयर किया करें, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक ईजीली पहुंच सके। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अरशद। अस्सलामु अलैकुम।